हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, है ना। एक्सरसाइज 11.1 के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। थोड़ा मैं सेटिंग कर लेता हूँ कैमरे की। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y and z axis, ठीक है। Find its direction cosines. We have to find the direction cosine. We know that direction cosine is L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. Okay, तो alpha is 90 degree. We can let alpha is 90 degree, so L is cos 90, beta is 135, then cos 135 degree, and n cos gamma, gamma is 45 degree. Okay, then value of L is cos 90 is 0, cos 135 is minus 1 by root 2, and n is 1 by root 2. So these are our direction cosines of this given line. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Second question is that find the direction cosine of the line which makes equal angle with the coordinate axis. Find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate axis. It's mean that alpha, beta, gamma are equal, because it is given that in the question the line makes equal angle with the coordinate axis. So if the line makes equal angle with the coordinate axis, then we take alpha, beta, gamma are equal. So cos alpha is equals to cos beta equals to cos gamma. Okay, so if cos alpha, cos beta, cos gamma equal, and we know that cos alpha is L, cos beta is M, and cos gamma is N, so L equal to M equal to N. But we have to find LMN, है ना, because we have to find LMN. तो use identity L square plus M square plus N square equal to 1. So if we take LMN equals to lambda, let, so lambda square plus lambda square plus lambda square equals to 1, है ना। We can put LMN by lambda, so 3 lambda square equals to 1, we get lambda is equals to 1 by root 3. We can lambda is equals to plus minus 1 by root 3. If lambda is equals to 1 by plus minus 1 by root 3, then L is equals to plus minus 1 by root 3, M is also equals to plus minus 1 by root 3, and N is also equals to plus minus 1 by root 3, because L, M, N all are equal to lambda. ठीक है, तो हमसे जो उसने पूछा है कि भाई ये प्रूव करो कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस बेटा ये होंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3. Now we are taking question number 3. A line has the direction ratio. Direction ratio is A, minus 18, 12. B is 12 and C is minus 14. Then find direction cosines. We have to find direction cosines. हमें direction cosine find करने. Then we use identity L is equals to A upon under root A square plus B square plus C square. N is equals to B upon under root A square plus B square plus C square, and N is equals to C upon under root A square plus B square plus C square. Now do yourself. आगे इसकी वैल्यू आप अपने आप पुट कीजिएगा, LMN की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको भी कंसेप्ट और बता देता हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है आगे, कि अगर हमारे पास A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन डायरेक्शन रेशियो निकालिए हमेशा आप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, और ये इक्वल होने चाहिए, इज इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। तो अगर ए बी और बी सी डायरेक्शन रेशियो सेम आते हैं तो इससे बात प्रूव होगी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट आने वाला 4 उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंसेप्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो दैट द पॉइंट्स
2 3 4 -1 -2 1 and 5 8 7 are collinear. तो let it is A, B and C. So डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे सबसे पहले हम ए बी के। डायरेक्शन रेशियो का मैंने आपको तरीका बताया था, x2 - x1 -1 -2 y2 - y1 -2 -3 z2 - z1 1 -4. So I can let it a1 is -3, b1 is -5 and c1 is -3. Okay, now direction ratios of BC. तो 5 - 5 + 1 हो जाएगा, इट इज़ 5 + 1, इट इज़ 8 + 2 7 - 1. ठीक है, तो इट इज़ A2 इज़ 6, B2 इज़ 10 and C2 इज़ 6. Okay, तो 6 10 6 and -3 -5 -3. Now taking ratio about it, A1 upon A2, A1 upon A2 is 1/2 minus B1 upon B2 minus, it is also -1/2, C1 upon C2, it is also -1/2. So we observe that A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम आ रहा है, सो इससे हमें ये बात पता चलती है कि पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलियर पॉइंट्स होंगे. सो A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे. ठीक है, तो जब भी आपको कोलिनियर प्रूव करना हो तो रेशियो इक्वल ला के दिखा दो. पैरेलल प्रूव करना हो तो भी आप रेशियो ला के इक्वल ला के दिखा सकते हो. ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि जब आप रेशियो निकाल रहे हो, जैसे आपने रेशियो फाइंड किया -3 -5 -3 था ये, तो हम इसे -1 से डिवाइड कर सकते हैं या -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो वी गेट 3 5 3. इसी तरीके से जैसे आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो आए थे 6 10 और 6, तो ये क्लियरली 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी. तो अगर हम इस पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 3. तो आप देखोगे तो डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम भी आ रहे हैं, है ना. तो आप डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड भी किसी फिक्स नंबर से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. या फिर रेशियो ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 -5 एंड -2. एक ट्राइंगल है, इसके हमें तीनों साइड्स के वर्टिसेस फाइंड करने, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, A B C. तो कोऑर्डिनेट से तो हमेशा डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं, तो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड AB, है ना. कोऑर्डिनेट से हमेशा डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं, फिर डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करते हैं. तो ये आ जाएगा -1 -3 -1 -3 1 -5 and 2 + 4. तो इट इज़ -4 -4 and 6. पूरी इक्वेशन को हम -1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी गेट 2 2 एंड -3. ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ गए, डायरेक्शन रेशियो आ गए. अब हमें चाहिए इसके डायरेक्शन कोसाइन, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड या लाइन जो भी है AB. तो फॉर्मूला था A अपॉन √A² + B² + C², B अपॉन √, ये भी B है, A² + B² + C², C अपॉन √A² + B² + C². कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे. तो ये हमारे लाइन साइड AB के डायरेक्शन कोसाइन आ गए. इसी तरीके से हम BC के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे. इसी तरीके से फिर हम AC के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेना. ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं. जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, सबसे पहले DR निकालना है आपको,
डी आर के बाद फिर डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज एल, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज एम, एंड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज एन। तो इस तरीके से आपको तीनों साइड्स के डीसी निकालने हैं। ठीक है, मैंने एक साइड के निकाल दिए, बाकी दो साइड के आप अपने आप निकालिएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, और हमारी एक्सरसाइज 11.1 भी बेटा कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करेंगे भाई। ओके।